Good evening, all of you. Welcome to Global Online Kannada. Myself, Nihal sir. So, this is the first lecture in which we are going to learn the first chapter of the Unit 9, that is People Development and Environment, Unit 9. And the first chapter is that is Millennium Development Goal. Okay. So, in this chapter, the Millennium Development Goal, we are going to discuss the 8 missions, or we can say 8 the targets of the MDG. Okay. So, what are the targets? What is the initiative that all the 189 members have taken for the achievement of these goals? Okay. So this is very important lecture. I suggest all of you please watch this video to the end. This will definitely help you in the upcoming examination of your NT UGC NET 2024. Okay. So before starting the session, very important thing I would like to tell you guys, that is for your UGC NET examination June 2024, Global Online is providing paper 1 complete course. Okay, for this we have started the new batch from 8th April. You can avail this right now as well. In this batch you will get the live lectures daily on the app at 9 p.m. For this, fees is just rupees 2400 only. You can join this batch through the Global Online application, which is free of cost, available on the Play Store. Or else you can do one thing, just contact on this number, but remember only WhatsApp will be applicable. Okay, you can call on the WhatsApp or you can message on the WhatsApp. The normal calls or normal messages will not be available. Okay, so join fastly. There are very few days remaining, so join fastly and start your preparation from today itself. Before commencing to the lecture, we need to discuss what are the syllabus, what are the chapters in this unit. So this is very important because apart from the syllabus they are not going to ask you any question. Okay, इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, सारा कुछ जो भी है आपके सिलेबस से ही आने वाला है। तो सिलेबस क्या है हमें पता होना बहुत जरूरी है, बराबर। सो दिस इज फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, वो कब तक अचीव करने हैं, कब से शुरू हुए हैं, कितने मेंबर्स हैं। Okay, what are the 8 goals in the millennium development goal, what are the 17 goals of the sustainable development goals। इस तरह से हमें हर एक चैप्टर जो है, हर एक पॉइंट जो है इस सिलेबस में कवर करना है। ठीक है, एंड डेफिनेटली एक एक पॉइंट जो है हमारा कवर होने वाला है इसमें, आपको इसमें कोई शिकायत नहीं होगी। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन, दैट मीन्स व्हाट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द ह्यूमंस and the environment। Okay, what are the initiatives that human are taking and the impact of these initiatives on the environment। correct। so क्या होता है environment में, अगर humans, अगर इंसान कुछ एक्टिविटी करता है तो, ठीक है, उसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर नथिंग बट दी एक्टिविटीज विच हैव डन बाय दी humans। clear। environment issues, environmental issues like pollutions, ठीक है, रीजनल हो गए, लोकल हो गए, ग्लोबल हो गए, हर एक लेवल पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। ठीक है, ये भी हमारे चैप्टर में है। तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना, इन्हें हम चैप्टर ही कहेंगे। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें और है इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, है ना, इंसान के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है जब पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, तो उससे ह्यूमंस के हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम चीज पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, फिर उसमें सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या होता है, सॉइल एनर्जी, हाइड्रो, geothermal, biomass, nuclear, forest, these all types of energies and resources we are going to discuss in the throughout the sessions। okay, throughout the this lectures। okay, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, उसमें भी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, नेचुरल हजार्ड्स को हम
उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो नेचुरल हजार्ड्स को हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, राइट। सो उसे कम, उसका इम्पैक्ट, उसका जो क्या बोल सकते हैं हम, लेवल जो है उसकी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, और वी कैन से आफ्टर द इम्पैक्ट हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम इट। Okay, that is also considered in the mitigation strategy. Okay, then lastly, environmental protection act, these are some acts and agreements we can say. इसमें environmental protection act हम पढ़ने वाले हैं, national action plan on climate change हम पढ़ने वाले NAPCC, right। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसमें है, रियो समिट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। कब ये एग्रीमेंट शुरू हुआ था, क्यों ये एग्रीमेंट शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, किसका इनिशिएटिव था, राइट। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी हमारे लेक्चर्स रेगुलरली होंगे वो सारे अटेंड करो। रोज रात को 9 बजे अपना लाइव सेशन जो है वो शुरू होता है, तो आप सारे लोग, आपके फ्रेंड्स को वगैरह जो भी है उनको शेयर करते रहो और खुद भी रेगुलरली देखते रहो, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से हम शुरू करते हैं। क्या था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कितने गोल्स है, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, तो ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस नाउ। The United Nations Millennium Development Goal, that is called MDGs in the short, are the 8 goals set by the 189 UN member states. Okay, in the September 2000. Okay, सितंबर 2000 में 189 यूएन मेंबर्स ने ये 8 गोल जो है वो डिसाइड किए थे, ठीक है। agreed to be achieved by the year 2015. So 2015 ये उनका ये जो ईयर है वो टारगेट ईयर था, मतलब कि 2015 तक ये 8 गोल्स जो है, 8 मिशंस जो है वो कंप्लीट करने थे, ठीक है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम शॉर्ट में एसडीजी बोलते हैं, succeeded the MDGs in 2016, right? So when MDG was end, the MDG was about to end in 2015. In the 2016, the SDG has taken over the goals of MDG and started new goals. Started with the new goals. The target year of SDG was 2030. Okay. Later we will discuss what are the targets and what are the missions of the SDG. Okay. So this is about the Millennium Development Goal. It has 189 members. It was started in 2000 September and agreed to achieve those goals by 2050. ओके, ये सारे पॉइंट्स जो है अभी मैंने जो बताए वो सारे आपको याद रखने हैं, क्या पॉइंट आउट करके रखना है या फिर नोट डाउन करके रखना है आपकी नोटबुक्स में, ठीक है। 8 Millennium Development Goals, okay, which range from halving extreme poverty to halting the spread of HIV/AIDS, okay, and providing universal primary education, all by target date of 2050. Okay, so 8 missions जो है, 8 जो goals जो है Millennium Development के, इसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने से लेकर HIV एड्स की स्प्रेड को कम करना, यहाँ तक के इसके गोल्स है, ठीक है। फ्रॉम बिलो टू द टॉप लेवल ऑफ द डिजीजेस, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें है, हम एक वन बाय वन देखने वाले हैं। फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट एग्रीड टू बाय ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज एंड ऑल वर्ल्ड्स लीडिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा 189 मेंबर कंट्रीज है इसमें, है ना। 189 मेंबर्स ने, 189 कंट्रीज ने मिलके ये 8 गोल्स बनाए हैं, और सारे कंट्रीज ने इसे एग्री किया है कि 2015 तक ये जो 8 मिशंस है हमें क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, बराबर। दे हैव galvanized unprecedented efforts to meet the needs of the world's poorest, ठीक है। मतलब कि दुनिया के सबसे गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट जो है ये पूरे कंट्रीज ने किए थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ये 189 मेंबर्स ने किए हैं, जिससे ये 8 गोल्स जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। सो ये 8 गोल्स है क्या, इसमें क्या क्या अचीव करना था, कहाँ कहाँ तक अचीव करना था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
सो इसके बाद इसका नेक्स्ट स्लाइड जो होगा वो हो गया आपके 8 गोल। ये सारे गोल्स में वन बाय वन आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सो दीज आर द 8 गोल्स ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट। पहला जो है वो है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, इसमें भी 3 टारगेट दिए गए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसमें फर्स्ट जो टारगेट था वो था कि जिनका इनकम $1.25 से कम है, ठीक है, द पीपल्स हु आर लिविंग ऑन लेस देन $1.25 इनकम पर डे, उसे हाल्व करना, मतलब कि हाल मतलब इरेडिकेट करना, कम करना, आधे से ज्यादा कम कर देना। ठीक है, तो जिनका इनकम इतना कम है उन्हें क्या करना, उनका इनकम बढ़ाने की कोशिश करना, है ना। और ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना कम करना, मतलब कि कम करना इन द सेंस उनका इनकम इंक्रीज करना, जिनका जिसकी वजह से $1.25 के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टारगेट इन विच फ्रॉम 1990 टू 2015 जितने भी $1.25 के अंदर तक, है ना, रहने वाले या जिनका इनकम इतना कम है, ऐसे लोगों को कम करना। सो सेकेंड टारगेट था उसमें, वो था कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना, फॉर विमेन, मेन एंड यंग पीपल, उसे क्या करना, एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट सबको प्रोवाइड करना, ये सेकेंड टारगेट था इसमें। थर्ड जो टारगेट था वो था हंगर के ऊपर। ठीक है, 1990 से लेके 2050 तक जो हंगर पे सफर कर रहे हैं, द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, उसे इरेडिकेट करना, ये सिचुएशन को इरेडिकेट करना, दैट वाज द थर्ड टारगेट इन द फर्स्ट गोल। सो these are the 3 targets in the first goal which were supposed to achieved in the 2015। ठीक है, सेकेंड गोल इज अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, इसमें एक ही टारगेट था। ठीक है, इसमें कितने टारगेट है, एक टारगेट, इसमें 3 टारगेट है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इसमें एक टारगेट था कि सारे चिल्ड्रंस, ऑल द चिल्ड्रन शुड हैव primary education or primary schooling, whether it is girl, whether it is boy, there should be no discrimination। Okay, so all children should have universal access to the primary education, all the person, all the girls and boys should have take uh, the universal sorry the primary education। ठीक है, सो ये दूसरा गोल था। तीसरा गोल है प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। बराबर, इसमें भी एक ही टारगेट था। ओके, इसमें क्या है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी जिसे हम बोलते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन इन द जेंडर सेक्टर, उसे कम करना, है ना, किस चीज में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में प्रेफरेबली। ठीक है, प्रेफरेबली मतलब कि एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि वुमेन्स को कम सिखाया जाता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें को कम करना थर्ड गोल था। सो जेंडर इक्वलिटी इसमें होनी चाहिए, वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करना चाहिए, मोर अपॉर्चुनिटी शुड कम फॉर दी वुमेन्स एज वेल, ओके, नॉट फॉर दी मेंस ओनली। सो ये सारी चीजें थर्ड गोल में आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसे कम करें, है ना, ऐसे इस तरह के इनिशिएटिव, इस तरह के कुछ चीजें हम कर सकते हैं जिससे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो सके, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, उससे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करें। ये सब चीजें थर्ड फोर्थ गोल में की गई थी। इसमें भी एक ही टारगेट है। ठीक है, इसमें जो टारगेट है उसका टारगेट जो था जो 2/3 इतना रिड्यूस करना था चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, फ्रॉम 2090 सॉरी 1990 टू 2050। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। ओके, इसमें दो तरह के टारगेट्स थे। ठीक है, देखो पहला टारगेट जो था, रिड्यूस बाय 3 क्वार्टर्स बिटवीन 1990 2015। करेक्ट, मैटरनिटी रेशियो, मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो हमें क्या करना है, 3 क्वार्टर्स तक रिड्यूस करना है, ये पहला टारगेट था। और दूसरा जो टारगेट है दैट वाज अचीव बाय 2015 द यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ये हमारा सेकेंड गोल था। उसके बाद है सिक्स्थ गोल, दैट इज कॉम्बैट HIV एंड एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। ओके, इसमें जो थे वो थे 3 टारगेट।
sorry, 3 targets. Okay, first one was uh, have halted by 2015, okay, and reverse the spread of HIV/AIDS. okay, क्या बताया यहाँ पे कि HIV/AIDS को जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं और ऐसे एक्टिविटीज है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दी HIV/AIDS, ओके, तो उस चीजों को और उस फैक्टर्स को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा फोकस करना हमारा पहला टारगेट था। ठीक है, कि ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे हम बोल सकते हैं कि फैक्टर्स जिससे HIV/AIDS ज्यादा बढ़ सकता है, उस फैक्टर्स को कैसे हम कम कर सकते हैं, दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव। ओके, सेकंड वेयर अचीव बाय 2010 यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV/AIDS। ओके, मतलब कि जो भी इसके एप्लीकेबल है, जिसे HIV/AIDS का ट्रीटमेंट चाहिए, उस फैक्टर में किसी को भी ऑल द पीपल शुड हैव यूनिवर्सल एक्सेस फॉर दैट ट्रीटमेंट। ओके, मतलब इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल पीपल शुड हैव द इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल access for the treatment for the HIV/AIDS. Clear? So this was the second target, and third target was about the apart from the HIV/AIDS जो other बड़े बड़े चीज डिजीजेस है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, ये तीसरा टारगेट था। ठीक है, by 2015 it should be halted and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases। ये हमारा थर्ड टारगेट था। ओके, सो इस तरह से सिक्स्थ गोल जो है इसमें 3 टारगेट थे और फर्स्ट गोल जो है इसमें भी 3 टारगेट थे। ठीक है, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक टारगेट कितने गोल्स में है, 2 टारगेट कितने गोल्स में है, और 3 टारगेट कितने गोल्स में है। ठीक है, इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू रिमेंबर दीज टारगेट्स। Next is seventh goal, that is ensure environmental sustainability। ओके, इसमें कितने टारगेट्स थे, इसमें टोटल 4 टारगेट्स है, 1 2 3 and 4। ओके, this is for mission and the mission has more targets। ओके, तो सेवेंथ गोल जो है इसमें पहला जो टारगेट है दैट इज इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू कंट्री पॉलिसी एंड प्रोग्राम। ओके, एंड रिवर्स द लॉसेस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे ये बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीज ने पॉलिसीज बनाए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसे इंटीग्रेट करना। दैट मीन्स सारे मेंबर्स कंट्रीज ने ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को फोकस करके, है ना, क्या करना है, उस पॉलिसी को इंटीग्रेट करना है। एक इंटीग्रेट मतलब एक करना है। ठीक है, सारे मिलके एक करना है। तो ये पहला टारगेट था। उसी के साथ उसी टारगेट में, फर्स्ट टारगेट में बताया गया था कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस का जो डिग्रेडेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लॉस जो होता है ना, उसे कम करना है। उस लॉस करने वाले फैक्टर्स को हमें क्या करना है, कम करना है। दैट वाज द फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट जो था वो था कि रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, एंड दिस टारगेट शुड बी अचीविंग बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस। ठीक है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है उसे रिड्यूस करना। बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। आया ध्यान में? सो प्रोटेक्ट जैसे हम करेंगे, उस प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या जरूरी है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जरूरी है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट? So once you get the environmental education, you will be able to uh, solve the issues of the environment. Okay, so you will be able to have that knowledge, that how we can reduce the losses, how we can stop the we can say uh, disasters, how we can mitigate. Okay, this kind of things only happens if you have the correct or accurate knowledge about the environment. So environmental education is important, correct? Second target जो था वो क्या था, where is the cursor? अरे हाँ, ओके, गॉट इट। सेकेंड टारगेट जो है वो क्या बोलता है कि
सेकंड टारगेट भी हो गया आई थिंक। हाँ, थर्ड टारगेट जो बोलता है वो बोलता है कि हाल बाय 2015, मतलब कि कम करना, क्या कम करना है, तो जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है उसे कम करना, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का यूनिवर्सल एक्सेस सबको मिलना। ये तो ये जो थर्ड टारगेट है वो कहता है। ठीक है, मतलब कि जो सैनिटेशन है, मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे डिजीजेस जल्दी स्प्रेड होते हैं, है ना, वहाँ पे सैनिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ों को सैनिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बेसिक सैनिटेशन सबको मिलना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस सबको मिलना चाहिए। सो दिस वाज द थर्ड टारगेट, करेक्ट। उसी के साथ जो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स है उसको भी कम करना है ना, ये भी हमारा तीसरा टारगेट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे चीज़ें क्या होती है, और ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती है, उसे फुलफिल करने के लिए हमारी जान चली जाती है, बराबर। सो पॉपुलेशन इज वर्स्ट। लास्ट टारगेट जो था वो था 2010 तक, ओके, 2020 तक, है ना, टू हैव by 2020 to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers। ठीक है, जो स्लम एरिया में रहते हैं, है ना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, वहाँ की एरिया को इम्प्रूव करना, दैट वाज द फोर्थ टारगेट ऑफ द सेवेंथ गोल। ओके, आया ध्यान में। एंड लास्ट वन वाज द डेवलपमेंट अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, सॉरी, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। अब इसमें तो बहुत सारी टारगेट्स है ना, इसमें जो टोटल टारगेट्स थे वो थे 6, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, टोटल 6 टारगेट्स वे देयर इन द 8th गोल। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया सब, जिससे हमें अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, 8th गोल के 6 टारगेट्स हम देख रहे हैं। पहला जो है वो टारगेट ये था कि एक फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग सिस्टम बनानी है। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिसमें प्रेडिक्टेबल हो, रूल बेस्ड होना चाहिए, और सबके लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है, ओपन, नॉन डिस्क्रिमिनरी, प्रेडिक्टेबल, रूल बेस्ड, ऐसी एक फाइनेंशियल सिस्टम और ट्रेडिंग सिस्टम बनाई जाए। ये हमारा पहला टारगेट था। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, एक टारगेट बेस्ड, एक रूल बेस्ड, है ना, एक नॉन डिस्क्रिमिनरी, है ना, एक ऐसी सिस्टम बन सकती है जिससे बाकी कंट्रीज की, बाकी मेंबर्स की इकोनॉमी, बाकी मेंबर्स की फाइनेंशियल सिस्टम, बाकी मेंबर्स की ट्रेडिंग सिस्टम भी क्या हो सकती है, ग्रो कर सकती है, डेवलप हो सकती है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टारगेट। सेकेंड जो था वो था जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जो डेवलपिंग सॉरी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या नेसेसरीज है, उन्हें क्या जरूरत है, इस चीजों में ज्यादा फोकस करना। दैट वाज द सेकंड टारगेट ऑफ द 8th गोल। थर्ड जो टारगेट था दैट वाज द एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ओके, ये दो तरह के जो आइलैंड्स, ये दो तरह के जो जगह है ना, उनके स्पेशल नीड्स को एड्रेस करना, दैट वाज द थर्ड गोल। फोर्थ जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, है ना, उसमें लिखा गया है, ओके, इसमें बताया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनके डेप्ट को लेकर, उनके डेप्ट प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा सा फोकस करना, या फिर थोड़ा सा ओवरव्यू करना, जिससे क्या हो सकता है कि नेशनल इंटरनेशनल मेजर्स को देख के, मतलब कुछ चीज़ों को देख के इनके डेप्ट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि जो डेप्ट है ना, वो सस्टेनेबल रहेगा लॉन्ग टर्म्स में। इस तरह का टारगेट्स था हमारा फोर्थ टारगेट। फिफ्थ टारगेट जो था वो था कि इन कोऑपरेशन विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, है ना, प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल इसेंशियल ड्रग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। समझ में आया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनके साथ क्या करना है, हमें इनके साथ कोऑपरेशन करना है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, ऐसे कंट्रीज को अफोर्डेबल ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है, ठीक है
अफोर्डेबल चीज़ें, एसेंशियल ड्रग्स, इस सारी चीज़ों का एक्सेस मिल सके। समझ में आया? सो दिस वाज द फिफ्थ गोल। एंड लास्ट गोल जो था, सिक्स्थ गोल, दैट वाज इन कोऑपरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर मेक अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इस तरह का जो सेक्टर है या फिर इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस होना चाहिए, इस तरह का टारगेट था। उसी के साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कोऑपरेशन करना, जिससे क्या हो सकता है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, सो इसमें थे 6 गोल्स, बाकी और गोल्स में इसमें थे 6 टारगेट्स, बाकी फर्स्ट में 3 टारगेट थे, बाकी कुछ गोल्स में एक एक टारगेट थे, और किसी में 3 टारगेट और किसी में 4 टारगेट। इस तरह से हमारे जो 8 गोल्स है मिलेनियम डेवलपमेंट के, ये पूरे होते हैं। समझ में आया? सो वन बाय वन हमने सारे टारगेट्स भी पढ़े हैं, सारे गोल्स भी पढ़े हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। If you have any doubt regarding this chapter, regarding this goals, okay, you can comment me in the comment box. Clear? So चलो, अभी आपने कितना समझा है ये देखने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग उसकी कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा हिंदी एंड इंग्लिश या दोनों लैंग्वेज में। सो देर इज नो एनी बैरियर अबाउट द लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग बोथ ऑफ them। ठीक है, सो हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। व्हाट यू नीड टू डू, आपको आपका जो ऑप्शन है, जो आप करेक्ट ऑप्शन देना चाहते हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वेदर इट इज ए, वेदर इट इज बी, वेदर इट इज सी और वेदर इट इज डी। ठीक है, जो भी है ABCD के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में है, आप दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी आपको प्रेफरेबल है। मैं आपको बता देता हूँ। इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम द UN मेंबर स्टेट्स एम्ड टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मतलब कि MDG जो है ना, MDG किसने डिसाइड किया था, ये 8 मिशन किसने डिसाइड किए थे, ये UN मेंबर्स ने। UN मेंबर्स मतलब जो 189 कंट्रीज जो है जिन्होंने ये टारगेट्स मिलके बनाए थे, वो मेंबर्स। ठीक है, तो ये मेंबर्स ने जो MDG के गोल्स बनाए थे, उस गोल्स को कब तक अचीव करने का उन्होंने टारगेट रखा था, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आया ध्यान में? 1995 to 2010, 2015 to present, 200 to 2015 और 1990 to 2005। ओके, इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। यू कैन आंसर इट इन 10 सेकेंड्स इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, 2000 to 2015। ठीक है, दैट वाज द टारगेट ईयर। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG आर 8 गोल्स, ठीक है, सेट बाय 189 मेंबर्स सितंबर 2000 एंड एग्रीड टू बी अचीव्ड बाय 2015। ठीक है, उसके बाद जो है 2016 में MDG को SDG ने कवर कर लिया था, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, कब आया था, कौन सा टारगेट था, कितने मेंबर्स थे, कितने गोल्स थे, क्या क्या गोल्स थे, क्या क्या टारगेट्स थे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। आया ध्यान में? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब गोल्स हमने देखे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट के, इसमें से कौन सा ऐसा गोल जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट में नहीं है, ऐसा पूछा है। ठीक है, कौन सा है ये नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है ये पूछा है, सॉरी कौन सा है ये पूछा है, बराबर। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, उसमें है ऑप्शन बी प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वीमेन, ऑप्शन सी है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ऑप्शन डी है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऑप्शन ई है कॉम्बैट HIV एड्स एंड मलेरिया अदर डिजीज, ऑप्शन F बी है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है,
तो ऑप्शंस जो है एक्चुअल ऑप्शंस में बताया गया है हमें कि इसमें से कौन से 4 होने चाहिए, ठीक है। वो ए बी सी डी होने चाहिए, वो बी डी ई एफ होने चाहिए, वो ए बी सी ई होने चाहिए, या सी डी ई एफ होने चाहिए, ठीक है। कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। दैट मीन्स ए बी सी ई, ठीक है। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये तो है। प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन, ये भी है ना। उसके बाद रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, ये भी हमने देखा है ना। और उसमें कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, ये भी देखा है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये टारगेट देखा था क्या? नहीं देखा था। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन उसमें देखा था? नहीं देखा था, ठीक है। सो इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो टारगेट है वो मिलेनियम डेवलपमेंट का नहीं है ना। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी एंड एफ, बराबर। तो हमें क्या पूछा है, कौन सा गोल जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल है। आया ध्यान में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। देखा मैंने अभी अभी बताया था आपको कि घुमा फिरा के ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कौन सा है ये पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, improve maternal health and reduce child mortality। अब इसमें से कौन सा गोल मिलेनियम डेवलपमेंट में हमने सारे गोल्स तो पढ़े हैं लेकिन कौन सा नहीं पढ़ा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज, जितने भी आपके करेक्ट आंसर आते हैं मेरे आंसर बताने के बाद अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जिस तरह से आपका NTUGC नेट का क्या है पैटर्न है उसी तरह से, ठीक है। मतलब समझो 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो 5, ठीक है। आपके 5 के 5 बराबर है, बराबर। तो 5 इंटू 2 करना है आपको, तो आपके होंगे 10 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आपका स्कोर जो है वो स्कोर भी आपको बताना है आपके कमेंट बॉक्स में। आया ध्यान में? लेकिन कब बताना है? आपका सेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बताना है कि एग्जैक्ट स्कोर आपका कितना हुआ है। क्लियर? देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग हमने तो देखा नहीं है ऐसा कोई भी गोल। हमने इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर देखा है जिसमें 3 टारगेट हमने देखे थे, है ना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ देखा है हमने जिसमें एक टारगेट देखा था। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी में भी हमने एक टारगेट देखा था, बराबर। तो इस तरह से हमने टारगेट्स को पढ़ पढ़ के ये सारे गोल्स जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, बराबर ना। सो इसमें कोई भी अगर डाउट आपको रहेगा या कोई भी और चीज़ आपको पूछनी है एग्जाम रिलेटेड वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है, इन द सेम सेशन और इन द नेक्स्ट सेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was not an issue to be addressed under Millennium Development Goal? मतलब ऐसा कौन सा इशू जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में क्या किया है, फोकस नहीं किया है, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टारगेट या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, फिर है प्राइमरी एजुकेशन, फिर है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फिर है ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कोई भी टारगेट नहीं है आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, है ना। तो ये कौन सा टारगेट है या फिर ये कौन सा मुद्दा है जो MDG में नहीं है, फटाफट बताओ चलो।
you have 10 seconds to answer this question, and don't forget to share your score. Okay, so right answer of this question is option D, that is human rights. Okay, ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई भी एक गोल इसमें नहीं है एमडीजी में। हमने सारे गोल्स पढ़े हैं, है ना। तो इस सारे गोल्स में एक भी हमने अगर ह्यूमन राइट्स का कोई टारगेट देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बताया है, हाउ मेनी कंट्रीज मेड द प्रॉमिस टू कमिट टू द एमडीजीज। बराबर, एमडीजीज को कंप्लीट करने के लिए कितने मेंबर्स ने इनिशिएटिव लिया था, कितने मेंबर्स आगे आके बताए थे कि हमारे ये टारगेट्स हैं एमडीजी के, ये हमारे 8 गोल है। ऐसे कितने टारगेट कितने मेंबर्स थे, मेंबर कंट्रीज थे, 200, 150, 189 और 100। मैंने बार बार आपको बताया है कितने इसमें मेंबर्स हैं, है ना। तो इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई भी गलती से भी गलत आंसर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबका राइट आंसर इसमें दिखना चाहिए फटाफट। देखो यहाँ पे कोई भी गलती होती है, कोई बात नहीं, गलती सुधर जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे सुधर जाओगे तो एग्जाम में अच्छी तरह से आंसर दे पाओगे, अच्छी तरह से आपका पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। अगर गलती होगी या फिर गलत आंसर आ जाएगा, सर कुछ बोलेंगे ऐसा वैसा, अगर आप सोच के आंसर नहीं दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। गलत हो गया तभी आप सीखोगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं सीखोगे। करेक्ट। चलो, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। 189 मेंबर्स जो है, ये सारे मेंबर्स ने मिलके ये 8 गोल्स जो है वो डिसाइड किए थे, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नहीं है ऐसा बताया है, तो जाहिर सी बात है इसमें एमडीजीज दिए रहेंगे, है ना, बराबर ना। तो एमडीजी कौन सा है इसमें, देखो, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लाइफ बिलो वाटर, एच आई वी, कॉम्बैट एच आई वी एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, है ना। वैसे जरूरी नहीं है कि इसमें एमडीजी ही होना चाहिए, है ना। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है तो वेरी इजीली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बराबर ना। सो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसमें नहीं है ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो ऑब्वियसली मैं आपको बताने के लिए ही यहाँ पे बैठा हूँ, है ना। तो बताओ फटाफट क्या आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट बताना है। और जितना भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज कॉम्बैट एच आई वी ऑब्लिक एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, ठीक है। तो एच आई वी एड्स ये जो डिजीज है, मतलब ये जो टारगेट है ना, ये है एमडीजी का। दिस इज नॉट अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बराबर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टोटल 17 गोल्स है, वो क्या गोल्स है हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन भी आपको देखना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज इसमें मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आया ध्यान में। चलो, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने सारे गोल्स जो है मिलेनियम डेवलपमेंट के देखे हैं, पूरे 8 टारगेट्स, सॉरी, पूरे 8 गोल्स, है ना, गोल्स हमने देखे हैं, बराबर। इसमें से 3 गोल फर्स्ट है, फर्स्ट 3 टारगेट फर्स्ट गोल के, एक टारगेट सेकेंड गोल का, एक टारगेट थर्ड गोल का, एक टारगेट फोर्थ गोल का, है ना। इस तरह से हमने सारे टारगेट्स भी देखे हैं, सारे गोल्स भी देखे हैं। तो इसमें से कोई भी अगर आपको डाउट आता है या कुछ भी चीज़ आपको खटकती है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम हेयर टू रिस्पॉन्ड यू, आई एम हेयर टू रिसॉल्व योर इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ओके। क्योंकि एग्जाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट है। एग्जाम में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है सब कुछ क्लियर। एंड डोंट वरी, ऑल द थिंग्स ऑफ पेपर वन वी विल बी डन, वी विल हैव इन दिस सेशन, ओके। एक एक छोटा छोटा चीज हम पढ़ने वाले हैं। सो सबको सजेशन है कि ये सारे वीडियोस देखो एंड मैक्सिमम जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।